Hello everyone, welcome back. I hope you must have completed your previous work. Okay, now let's start with theme 2, Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. The time period C 600 BCE to 600 CE. Students, here C means circa. Okay, circa means it is a Latin word, right? It means around, approximately. We are not sure about the date. Okay, so here it is written C. Okay, that is 600 BCE to 600 CE. It means the period of 1200 years. Okay, let's start today's topic: Princeps and Piyadasi and the earlier states. Now, there were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद की बात है ये. ओके, सो दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेदा वॉज कम्पोज्ड. ये वो भी पीरियड है जहाँ ऋग्वेदा कंपोज हुआ बाय पीपल लिविंग अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. ठीक है, जो इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी के आसपास रहते थे. ओके, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट emerged in many parts of the subcontinent. Agriculture settlement भी हुए, right, including North India, the Deccan Plateau and the parts of Karnataka. Okay, beside there is evidence of pastoral population in Deccan and further south. Okay, and new modes of disposal of death. जो डेड थे उनको डिस्पोज करने के भी न्यू मोड जो हैं हम देख रहे हैं, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलाबरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ. ये भी स्टार्ट हुआ. ओके, इमर्ज इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE. In many cases, the dead were buried with a rich range of iron tool and weapons. Okay, children? And the last one is from C. Circa again, 6th century BCE. There is evidence that there were other trends as well. Perhaps the most visible was emergence of early states. New cities and kingdom जो थे ये emerge हुए. Empire, kingdom, right? So underlying these political processes were other changes evident in the ways in which agricultural production was organized. ठीक है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल और प्रोडक्शन जो था जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होता था तो ये इससे भी पता चलता है. एंड साइमल्टेनियसली धीरे धीरे आप देख रहे हैं इसी के साथ न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट throughout the subcontinent. Okay, so 600 BCE major turning point in the early Indian history and growth of 16 Mahajanapada that you will read this in later. Okay, this chapter. Many were ruled by kings, some known as Ganas or Sanghas, were oligarchies, were small group. Okay, and between the 600 BCE and 400 BCE, Magda became the most powerful Mahajanapada, right? And emergence of Maurya Empire, Chandragupta Maurya. Again, the time duration is in C, circa. That means 321 BCE approximately. Okay, he was considered as the founder of the empire. Extended control up to Afghanistan and Balochistan. Okay, and his grandson Ashoka, he was the most famous ruler and conquered Kalinga, right? A variety of sources to reconstruct the history of Maurya Empire, archaeological finds, especially sculptor Ashoka's inscriptions, literary sources like Indica account that you will read in further chapter, right? The historian attempt to understand these developments by drawing on a range of sources. Clear? That is inscriptions, text, coins, visual materials. Okay, children, you very well know about the inscriptions, right? So this is the picture of an inscription in Sanchi, Madhya Pradesh. Again, the time duration is circa 2nd century BC. Okay, so inscriptions are writings engraved on hard surfaces such as stone, metal और pottery. ठीक है, engraving होती है ये जो लिखी जाती है, right, hard surfaces में. और यूजुअली ये रिकॉर्ड्स या अचीवमेंट होते हैं
ठीक है, राजा महाराजाओं द्वारा किए गए, या किसी जो वेल टू डू विमेन या मैन होते थे वो डोनेट करते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। तो इंस्क्रिप्शन जो है दे आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड होते थे, राइट, एंड सम ऑफ विच कैरी डेट्स, कुछ में डेट्स लिखी होती थी और जिनमें डेट नहीं भी लिखी होती थी तो उनको उनकी राइटिंग के स्टाइल से पहचान लिया जाता था, उसकी अमाउंट ऑफ प्रिसीशन देख के। ओके, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो थे वो प्राकृत भाषा में होते थे, लैंग्वेज जो कि ऑर्डिनरी पीपल वहाँ के लोग बोलते थे, राइट। और नेम ऑफ द रूलर जैसे अजातशत्रु है, अशोका है, दे नोन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट, ठीक है, प्राकृत टेक्स्ट से उनको जाना गया है। एंड इंस्क्रिप्शन हैव बीन स्पेल्ड इन देयर प्राकृत फॉर्म इन दिस चैप्टर, राइट। So you will also find the terms in languages such as Pali, Tamil and Sanskrit, which too were used to write inscription and text. So it is possible that people spoke other languages as well, even though these were not used for writing. Okay, बोली जाती थी लेकिन लिखी नहीं जाती थी, बोलने की भाषाएं बहुत होती थी, right? Next start with Princeps and Piyadasi, right? So Princeps, एपिग्राफी चिल्ड्रन, एपिग्राफी मीन्स इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं, राइट। तो सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी, ये कब हुआ, 1830s में, राइट। इन द 1830s जेम्स प्रिंसेप, कौन थे जेम्स प्रिंसेप? ही वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट, मिंट होती है फैक्ट्री ऑफ, ये जो कॉइन्स होती है ना, वहाँ जो कॉइन्स बनते हैं, जहाँ टकसाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पे जो है ये ऑफिसर थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने डिसाइफर किया था ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है, 2 स्क्रिप्ट्स को उन्होंने डिसाइफर किया जो कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में यूज़ होती थी, राइट। और उन्होंने कॉइन्स वगैरह ये सब कुछ डिसाइफर किया। सो ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दिस मेंशन्ड अ किंग रेफर्ड टू एज पियादासी, एक जो राजा था जिनको पियादासी के नाम से भी रेफर किया जाता था, और पियादासी का मतलब था प्लेजेंट टू बीहोल्ड, मनोहर मुखाकृति, ठीक है, तो बहुत सुंदर मुख था जिनका, ठीक है। तो देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो रेफर टू द किंग एज अशोका, तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो अशोका के नाम से ही लिखे गए हैं। एंड वन ऑफ द अशोका कौन थे? वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नोन फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो ये मोस्ट फेमस रूलर थे जो हमें बुद्धिस्ट ग्रंथों से हमें पता चलता है, राइट। सो दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन। अब जब ये 2 स्क्रिप्ट हमारी डिसाइफर होगी तो एक नई डायरेक्शन मिली इन्वेस्टिगेशंस के लिए अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्योंकि क्या होता था, यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर जो होते थे वो इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट को ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जिससे रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए लिनिएज ऑफ मेजर डायनेस्टी, जो मेजर डायनेस्टी होती थी उनकी जो टाइम पीरियड होती थी उसको पता करने के लिए ये इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट का ही इस्तेमाल करते थे, राइट। एज अ रिजल्ट द ब्रॉड कंटूर ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन प्लेस बाय अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, फिर उसके बाद स्कॉलर्स जो थे उन्होंने अपना फोकस जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि क्या कोई कनेक्शन है पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, राइट। तो ये बहुत जल्दी ही रियलाइज़ कर दिया गया कि लिंक हैं, लेकिन वो सिंपल और डायरेक्ट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द अर्लियर स्टेट्स। ओके, earlier states, the 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history, right? अब देखिए, it is an era, कैसा era था ये? That is associated with early states, ठीक है, early states, cities, a growing use of iron and development of coinage, सिक्के, ठीक है, जो आयन था, लोहे का बढ़ता यूज़ था और किस तरह से जो सिक्कों का विकास था, ठीक है, इससे रिलेटेड था। ओके, तो इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। ओके, अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, जो अर्ली बुद्धिस्ट पहले के जो टेक्स्ट थे, ठीक है, जो ग्रंथ थे, दे मेंशन अमंगस्ट अदर किंग्स
16 स्टेट नोन एज महाजनपदा, ठीक है। उन्होंने और भी चीज़ों के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया 16 स्टेट्स, ठीक है ना, उनको क्या कहा जाता था, महाजनपदा, ओके। ऑल्दो द लिस्ट वेरी, सम नेम्स सच एज वज्जी, मगधा, कौशला, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती occur frequently, right? And children, you must have watched the serial Mahabharata in this lockdown period, right? And you are now familiar with the name of these states, right? Okay, so these were amongst the most important Mahajanapada. Clear? Okay, this is the picture, you can say map of early states and their capital. Okay. While most of Mahajanapada were ruled by kings, some known as Gana or Sanghas, right? Gana or Sanghas were oligarchies. Oligarchies, as I already told you, these are, right, a small group of people, group of small men, okay. Oligarchy referred to a form of government where power is exercised by a group of men. Roman Republic, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है, was an oligarchy, okay. In spite of its name, it was an oligarchy. So both where power were shared by a number of men, often collectively called राजा, ओके। यहाँ पे इनको राजा कहा जाता था, ओके। बोथ महावीरा एंड द बुद्धा बिलोंग टू सच गणास। तो जो महावीरा और बुद्धा थे वो ऐसे गणों से ही बिलोंग करते थे। जैसे एग्जाम्पल देख लें हम, जैसे हम वज्जी संघा का एग्जाम्पल लेते हैं। राजा प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज, राजा जो होते थे ये रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे। रिसोर्सेज कैसे, लैंड्स, ठीक है ना। एंड ऑल्दो देयर हिस्ट्री आर ऑफन डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट ड्यू टू द लैक ऑफ सोर्सेज। हिस्ट्री हम रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सोर्सेज का अभाव है। और कुछ स्टेट्स जो हैं वो नियरली 1000 ईयर्स तक ही चले, राइट, ओके। ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी। अब हर महाजनपदा की कैपिटल सिटी होती थी विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, और कैपिटल सिटी को हमेशा फोर्टिफाइड रखा जाता था, राइट। तो मेंटेनिंग दिस फोर्टिफाइड सिटी एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंस्पेंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ओके। सो फ्रॉम सी circa again 6th century BCE, okay, onwards, Brahmanas began composing Sanskrit text, ठीक है। तो अब जो है ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने शुरू कर दिया संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज करना, जिसे कहा जाता था धर्म सूत्रास, राइट। एंड दीज लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स, और इन्होंने रूलर्स के लिए नॉर्म्स जो हैं वो बनाए, एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज, बाकी कैटेगरीज के लिए भी इन्होंने नॉर्म्स बनाए। एंड हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू क्षत्रिय, राइट। और इन्होंने जो है एक तरह से नॉर्म्स बनाने शुरू कर दिए। रूलर कौन होगा, क्षत्रिय होगा, राइट। सो रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस। अब रूलर्स जो थे वो क्या करेंगे, टैक्स इकट्ठा करेंगे, ट्रिब्यूट इकट्ठा करेंगे कल्टीवेटर्स से, ट्रेडर्स से एंड आर्टिसन से, राइट। तो रिसोर्सेज अगर हम देखें तो ये पेस्ट्रोलिस्ट और फॉरेस्ट पीपल भी देते होंगे, हमें नहीं पता है इसके बारे में, ओके। व्हाट वी डू नो, हमें क्या पता है, इज़ दैट रेड्स ऑन द नेबर स्टेट, क्या होता था, रेड करते थे, जो पड़ोसी स्टेट होता था उस पर रेड करते थे, आक्रमण करते थे, और उसको लेजिटिमेट माना जाता था, वैध माना जाता था, द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, वेल्थ को एक्वायर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, पड़ोस के राज्य पे हमला करते थे, ओके। ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन्ड रेगुलर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्टेट जो थे इनकी एक स्टैंडिंग आर्मीज़ थी, ठीक है, स्थायी उन्होंने अपने पास सेना रखी हुई थी, ब्यूरोक्रेसी था। एंड अदर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिशिया, और कुछ जो होते थे वो मिलिशिया पे, सेना पे डिपेंड करते थे, रिक्रूटेड एंड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पेजेंट्री।
और जो वो सेना होती थी वो किसान लोग होते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट अमंगस्ट द 16 मगधा। ओके, नाउ विल रीड अबाउट मगधा। सो बिटवीन द 6th and 4th सेंचुरी BCE, हम क्योंकि बैक आ रहे हैं, राइट, BCE है बिफोर कॉमन एरा, तो हम बैक चलेंगे, राइट। तो 6th and 4th सेंचुरी मगधा इट बिकेम द पावरफुल महाजनपदा, ठीक है। तो प्रेजेंट डे बिहार है ये, ओके। मगधा जो उस टाइम था, अब हम इसको बिहार के नाम से जानते हैं, ओके। तो इट बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, राइट। तो मॉडर्न हिस्टोरियन एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन वैरायटी ऑफ वेज। बहुत तरीके से मॉडर्न हिस्टोरियन इसको बताते हैं कि किस तरह से इसका विकास हुआ। सो मगधा वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव, ठीक है। एग्रीकल्चर नंबर 1, बिसाइड इट वॉज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उसमें भी ये रिच था, राइट। आयरन माइंस तो थे ही, राइट, एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन, हथियार उपकरण भी बनते थे। और एनिमल्स लाइक एलिफेंट, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर्मी में इस्तेमाल होते थे एलिफेंट, वर फाउंड इन फॉरेस्ट इन द रीजन, राइट। तो ये भी वहीं पे मिलते थे। ऑल्सो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइडेड a means of cheap and convenient communication, right। गंगा और इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज होती थी, जो भी इसकी सहायक नदियाँ होती थी, वो एक कॉन्वेंट कम्युनिकेशन देती थी, राइट। हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स हु रोट अबाउट मगधा एट्रीब्यूटेड इट्स पावर टू द पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे रुथलेसली एम्बिशियस किंग्स of whom Bimbisara, Ajatshatu and Mahapadmananda are the best known, and their ministers who helped implement their policies, ठीक है। Then initially Rajgaha, the Prakrit name for the present day Rajgir in Bihar, अभी जो है राजगीर है, बिहार है, right, was the capital of Magधा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली जो ओल्ड नेम था राजगह का मतलब है हाउस ऑफ द किंग, राजा का घर, राइट। एंड राजगह वाज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमंगस्ट हिल्स। लेटर इन द 4th सेंचुरी BCE द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, ठीक है। बाद में जो कैपिटल है ये पाटलिपुत्र की तरफ कर दिया गया। प्रेजेंट डे पटना, पाटलिपुत्र पटना, राइट। Commanding routes of communication along the Ganga. Okay, this is the picture that show fortification walls at Rajgir. Okay children, I hope you understood today's topic, and if there is any query you can message me. Thank you.